Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, in our today's class, we all are going to see the last chapter of your EVS book, okay? And that is your chapter number 14. And the name of your chapter number 14 is Map. In this chapter, my dear student, we all are going to see about map, okay? And in map, we are going to see how we human beings are showing the shape of our planet Earth, okay? And as well as we are also going to see the concept behind globe, okay? What is globe? And compass, use of compass, okay? So all these things we are going to see in detail in this chapter. So come with me and let's explore the chapter. We live on the earth. Like us, many other human beings, animals and birds also live on the earth. The earth is our home. We all people live in planet अर्थ, ओके? तो हम लोगों की तरह और भी बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं जो प्लानट अर्थ पे रहते हैं, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है? वो लोग क्यों रहते हैं यहाँ पे? बिकॉज अर्थ इज आवर होम. अर्थ क्या है? हमारा खुद का घर है, ठीक है? ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू लिव. द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. Okay, and for our own survival, or in other words, I would like to say, for the survival of each and every living beings, we need oxygen. Okay, and oxygen is a gas which is present in the air. Okay, और air कहाँ पे? Air सिर्फ और सिर्फ planet Earth में. तो हमारे solar system में जितने भी planets हैं, Earth ही इकलौता ऐसा planet है जहाँ पे air है, जहाँ पे water है, ठीक है? और air क्या है? एयर एक पूरा का पूरा शीट है जिसने हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को कवर किया हुआ है, ठीक है? देन द अर्थ हैज वाटर टू. अर्थ के पास पानी भी है. द लैंड, water and air are necessary for life, okay? So for the survival of any living being, we need three things: land, water and air, okay? And all these three things are available only in planet Earth, in the whole solar system, okay? The earth has the land, water and air, so life is found on it, ठीक है? अब प्लैनेट अर्थ पे सिर्फ ये तीन चीज है, इसीलिए लाइफ कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट अर्थ पे है, ओके? नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज द शेप ऑफ द अर्थ, ओके? नाउ शेप ऑफ द अर्थ, ये बहुत ही बड़ा डिबेट का टॉपिक रहा है स्टार्टिंग से हमारे लिए, ठीक है? किसी ने कहा कि पूरा हमारा जो अर्थ है उसका शेप पूरा राउंड है, किसी ने बोला स्फेरिकल है, तो किसी ने बोल दिया ओवल शेप है, तो किसी ने बोला फ्लैट है, ठीक है? तो देखा आप लोगों ने, बहुत सारे डिबेट्स चलते आए हैं, ओके? सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सी अबाउट द शेप ऑफ आवर अर्थ. लेट्स सी. द शेप ऑफ द अर्थ इज डिस्टिंक्ट. It is that of an orange, spherical, but not a true sphere. It is slightly flattened at the poles and bulging at the center. ठीक है? तो जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया, बहुत लंबे टाइम से डिबेट का टॉपिक रहा है कि क्या शेप है, ठीक है? तो देखिए, किसी ने बोला कि ऑरेंज शेप में है, मतलब ऑरेंज जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उस शेप में है, तो किसी ने स्फेरिकल शेप में बोला इसको, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि पूरा का पूरा गोल है, ठीक है? किसी ने ये बोला कि ये पोल्स पे फ्लैट है, या फिर किसी ने ये बोला एक बल्ज की तरह है सेंटर में, ठीक है? तो ये सारे शेप्स बताए गए हमारे प्लैनेट अर्थ के शेप को डिस्क्राइब करने के लिए, ओके? नाउ वी आर गोइंग टू सी, कीप इन माइंड फैक्ट. The exact term used for the earth shape is geoid. It means earth shape. So now here comes the question. If there is such a long debate regarding the shape of our earth, then how we are going to describe about the shape of our earth? Simply, my dear student, in general term or commonly all people agreed that our earth shape is in geoid shape, okay? And geoid means earth shaped. Simple, earth shaped. Okay, now we are going to see the globe concept. Let's see. A globe is the small model of the earth. It shows the round shape of the earth. So globe क्या है? Globe हमारे planet earth का एक छोटा सा round क्या है? Small model है, ठीक है? ये क्या करता है? ओके, तो जो ग्लोब है वो हमारे प्लैनेट अर्थ का राउंड शेप शो करता है, ठीक है? तो जब आप ग्लोब देखोगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा यू आर होल्डिंग योर प्लैनेट अर्थ, ठीक है? We can see only one half of the earth on a globe. लेकिन जब आप ग्लोब को देखते हो तो ग्लोब के एक तरफ only you can see first portion of the earth, okay? Only you can see one side of the earth, ठीक है? तो ग्लोब में एक टाइम पे only you can see one side of the earth, another side of the earth is not visible for you, okay? We have to rotate it to see the other half of the earth, ठीक है? तो दूसरा हाफ देखने के लिए you have to rotate the globe. Then the globe shows the water bodies and land in their accurate प्रपोर्शन, ठीक है? तो ग्लोब क्या करता है? ग्लोब में
लैंड का डिवीजन मतलब लैंड पोर्शन एंड वाटर पोर्शन, ये दोनों हमें ग्लोब में दिखता है। वी कैन सी द करेक्ट शेप एंड साइज ऑफ द वाटर बॉडीज एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन इट, ओके। और ग्लोब में हम लोग अर्थ के करेक्ट शेप और साइज को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ सारे कॉन्टिनेंट्स को, सारे सीज को, सारे वाटर बॉडीज को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। The globe has two end points, okay, and in globe, my dear students, we have two end points, okay. The top end is called the north pole and the bottom the south pole, ठीक है। तो जो ये दो एंड पॉइंट है, ये जो टॉप में एंड पॉइंट है इसे कहा जाता है नॉर्थ पोल, और जो लोअर साइड में है, जो नीचे के हिस्से में आता है, उसे कहा जाता है साउथ पोल, ठीक है। The circle exactly in the middle between the two poles is called the equator, ठीक है। और पूरे के पूरे ग्लोब में मिडल से एक लाइन गई है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब ये इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे प्लैनेट अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। द हाफ टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो इक्वेटर का जो हिस्सा नॉर्थ पोल के साइड है, ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ पोल की तरफ है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा सबसे ज्यादा लैंड पोर्शन है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा वाटर पोर्शन है हमारा, ठीक है। चलिए, नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, when you study a globe you will find numerous vertical and horizontal lines all around it forming a pattern called a grid system। जब आप ग्लोब को स्टडी करोगे then you can see many vertical and horizontal lines are drawn, ठीक है। ये लाइंस क्या हैं? ये लाइंस को ग्रिड कहा जाता है, ठीक है, और यही कहलाता है आपका ग्रिड सिस्टम, ओके। नाउ मैप। सो अभी तक हम लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग टू सी मैप। मैप क्या होता है? देयर इज अनदर सिंपल एंड इजी वे टू स्टडी द अर्थ। ग्लोब क्या है? ग्लोब पे पूरे प्लैनेट अर्थ को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए ग्लोब से भी ज्यादा सिंपल हम लोगों ने अपने प्लैनेट अर्थ को स्टडी करने के लिए मैप बना दिया, ठीक है। वी कैन स्टडी द अर्थ ऑन अ मैप। A map is drawing of the earth on a part of it, okay? तो मैप क्या है? हमारे प्लैनेट अर्थ का एक ड्राइंग है जिसको हम पढ़ते हैं उस पर मैप में, ठीक है। मैप कैन बी बिग और स्मॉल। मैप क्या होता है? आपका बड़ा भी होता है और स्मॉल भी होता है। Sometime we use large sized map and hang them on the walls, ठीक है। आप लोगों को स्कूल में देखा होगा, आप लोगों ने मैप्स टंगे हुए हैं, इंडिया का, पूरे हमारे अर्थ का टंगा हुआ रहता है, ठीक है, तो आपने देखा है। तो वो मैप आपके बड़े मैप्स होते हैं, अब कुछ मैप्स आपके बुक में बने होते हैं, तो वो जो छोटे मैप हुए हमारे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड वॉल मैप्स, ठीक है। तो जो मैप्स हम लोग वॉल पे टांगते हैं उसको कहा जाता है वॉल मैप्स, ओके। सो दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री इंडिया। We can know the political and physical features of a country through maps। अच्छा, मैप्स की क्या जरूरत है? मैप्स में हम लोग किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल फीचर एज वेल एज फिजिकल फीचर, ये दोनों देख सकते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फिजिकल फीचर एंड पॉलिटिकल फीचर? फिजिकल फीचर क्या होता है? सारे नेचुरल फीचर्स हमारे, ठीक है, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन रेंजेस, ओके, लैंड एरिया, ओशन बॉडीज, ये सब कुछ क्या है? हमारे फिजिकल फीचर ऑफ मैप में दिखाए जाते हैं। एंड नाउ व्हाट अबाउट पॉलिटिकल फीचर ऑफ मैप? हम लोग पॉलिटिकल फीचर में क्या दिखाते हैं? हमारे कंट्री का बॉर्डर पूरा, ठीक है, बॉर्डर लाइन, उसके बाद कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, उन स्टेट्स का बॉर्डर लाइन, ठीक है, रोड, रेलवे, मॉन्यूमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हम लोग पॉलिटिकल मैप में दिखाते हैं, ठीक है। मींस फिजिकल मैप में नेचुरल चीजों को दिखाते हैं, एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल मैप वी शो ऑल द मैन मेड थिंग्स, ओके। सो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स। नाउ a map on which the whole surface of the earth can be seen is called the world map। और वर्ल्ड मैप क्या कहलाता है? वॉल मैप तो आपको समझ में आ गया, वो मैप जो आप अपने वॉल पे टांग सकते हैं ना। व्हाट अबाउट वर्ल्ड मैप? वर्ल्ड मैप का मतलब वो होता है जिसमें आप पूरे प्लैनेट अर्थ को शो करते हो, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे ओशंस, सारे सीज, सारी कंट्रीज मेंशन होता है, एंड दैट टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड आवर वर्ल्ड मैप, ओके। There are some areas which are blue and some that are brown in color। The blue color shows the water bodies and the brown color shows the land area। तो आप देखते होंगे in world map, my dear student, you can see many portion of the planet Earth is covered in blue color, okay, and some portion are covered in brown color, okay। So those areas which are covered in blue color, they are showing the water bodies which is present on our planet Earth, okay, and on the another hand side, the areas which is covered in brown color, they are showing the land portion of our planet Earth, okay।
मैप कैन बी स्मॉल इन साइज, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, ठीक है। तो मैप्स आपके बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे मैप्स को मिला के हम एक बुक बनाते हैं तो हम उसको एटलस कहते हैं। एटलस आप लोगों के कोर्स में होगा, ठीक है, आपके घरों में भी एटलस होगा। एटलस क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, ठीक है। We have learned that 3/4 of the earth is covered with water. तो अभी तक हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ का जो 1/3 पोर्शन है वो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इन द मैप यू कैन सी वेरी लार्ज वाटर बॉडीज, और मैप में आप लोग देखोगे बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं हमारे, ठीक है। द वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन, और इन दीज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन, और इन्हीं वाटर बॉडीज को जो ब्लू कलर से किए हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं? ओशंस कहते हैं, ठीक है। The four main oceans of the world are, so हमारे planet Earth में mainly 4 oceans हैं, ठीक है। So what are the name of those 4 oceans? The first ocean is Pacific Ocean, and Pacific Ocean is the largest ocean body which is present on our planet Earth, okay. Atlantic Ocean, and then comes the second largest ocean which is called as Atlantic Ocean, and the shape of Atlantic Ocean is S, okay. And Atlantic Ocean is one of the most busiest ocean among all the ocean bodies, ठीक है। क्यों बिजी है? क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड अटलांटिक ओशन से ही किया जाता है, ठीक है। नाउ द थर्ड ओशन, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, हमारी कंट्री इंडिया के नाम से है, ठीक है। देन कम्स द आर्कटिक ओशन, ओके। फिर आर्टिक ओशन का नाम आता है, आर्टिक ओशन द स्मॉलेस्ट ओशन, ओके। तो देखा आपने, सारे ओशंस की अपनी अपनी खासियत है। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है, ठीक है, और यहीं पे इसी पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर पाया जाता है जहां पे वॉल्केनो, सुनामी, अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आते हैं, ओके। सो दिस आर द स्पेशल फीचर्स अबाउट द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का जो शेप है वो एस अल्फाबेट के शेप में है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा बिजी ओशन है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स यहीं पे किया जाता है, ठीक है। एंड नाउ अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन हमारा थर्ड लार्जेस्ट ओशन है जिसका नाम है, इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, ठीक है। देन कम्स द आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन आपका सबसे छोटा ओशन है, ठीक है। सिमिलरली वेरी लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ब्राउन कलर के पोर्शन आप लोग ग्लोब में देखते हो, मैप में देखते हो, वो क्या है? वो हमारा लैंड पोर्शन है, और उसी लैंड पोर्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स, ओके। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द प्लैनेट अर्थ, ओके। सो हमारे प्लैनेट अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ इज एशिया, जिसमें हमारा कंट्री इंडिया भी आता है, ठीक है। देन कम्स द अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका इज कॉल्ड एज अ डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है। और सबसे पहले ऐसा कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमंस जहां पे आए थे, सबसे पहले ह्यूमंस किस कॉन्टिनेंट में पैदा हुए? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। देन कम्स द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ओके। देन कम्स साउथ अमेरिका, देन यूरोप, then comes the Australia, and Australia is the smallest continent. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। एंड देन कम्स द अंटार्कटिका, ओके, अंटार्कटिका, ओके। तो हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स, हाउ मैप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेट्स सी, इट इज नॉट इजी टू कैरी अ बिग ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So maps are very important for us. My dear student, it is not possible to carry globe from one place to another place, okay. So we have drawn maps as a replacement of globe so that we can carry those maps from one place to another place, okay. We can carry them easily from one place to another. They can be folded or rolled. मैप्स को आप फोल्ड भी कर सकते हो या फिर उनको आप रोल भी कर सकते हो. दे कैन बी केप्ट एनीवेयर और बी पेस्टेड इन बुक्स. आप मैप्स को कहीं पे भी रख सकते हो. इवन यू कैन पेस्ट देम इन योर बुक एंड नोटबुक्स आल्सो. ओके, दे आर वेरी यूजफुल. ये बहुत ज्यादा काम आते हैं. Since the dawn of civilization, man has been using them for different purposes. मैप का कॉन्सेप्ट कोई अभी नया नहीं है. मैप का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है. ठीक है. Keep in mind fact, a map mainly help us to see where one place is in relation to another. ठीक है. मैप में क्लियरली आप देख सकते हो कि एक जगह किसी दूसरे जगह से कैसे जुड़ा हुआ है. ठीक है. Now comes the concept of compass. What is the meaning of compass? Let's see. A compass is an instrument which helps to know the directions. Okay, तो compass क्या है? compass वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डायरेक्शंस बताता है. ठीक है. There are 4 directions. You all know, my dear students, in our planet Earth we have 4 directions: east, west, north and south.
दिस डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द मैप। ओके, अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप अपने मैप में किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, द कंपास इज लाइक अ वॉच एंड हैज अ निडल व्हिच ऑलवेज पॉइंट ऑन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो कंपास का एक वॉच की तरह होता है जिसमें एक निडल होता है, उस निडल का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साइड में रहता है। ठीक है, कंपास में कभी भी निडल आपको ईस्ट, साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। निडल जो होता है कंपास का, दैट निडल ऑलवेज शोज नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ नॉर्थ। ओके, लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको ये सीखना है कि डायरेक्शंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कंपास की हेल्प से। हैंग द मैप ऑन अ वॉल एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी मैप आप अपने वॉल पे टांग दीजिए और उसके सामने आप खड़े हो जाइए। द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ। तो आप देखोगे आपने जो मैप टांगा हुआ है उस मैप का जो टॉप पोर्शन है वहां पे एक निडल जैसा शेप में बना होगा और वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है। द साउथ इज ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ द मैप। और अगर वो टॉप आपका नॉर्थ है तो साउथ कहां होगा, नॉर्थ के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, और आपका जो राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड के साइड आपका ईस्ट डायरेक्शन है और आपके लेफ्ट हैंड के साइड वेस्ट डायरेक्शन है। तो आपको पता चल गया डायरेक्शंस। ठीक है, okay, so this is all about our compass. Okay, so in this way my dear student we have completed this chapter. Now come with me, let's see the wrap up of this chapter. The earth is surrounded by the air is called atmosphere. A globe is a small model of the earth which shows the round shape of the earth. Okay, the globe has two end points. The two end is called the north pole and the bottom end is called south pole. Absolutely right. Map are easy to carry from one place to another place in comparison of globes. Then a compass is an instrument which helps to know the directions. Okay. Now fact corner. Observatory is a room or building equipped for the observation of natural and astronomical phenomena. एक ऑब्जर्वेटरी रूम बनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट जहां पे बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स रखी होती हैं जिससे कोई भी अगर नेचुरल या एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस हो रही हैं स्काई में, यू कैन ऑब्जर्व देम in that observatory room. Okay, so this is all about our chapter. Now come with me, let's see the question answer section of this chapter. Okay, so my dear student, इस chapter को start करने से पहले OMR शीट का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो OMR शीट क्या होता है हमारा? OMR शीट में आपको आंसर्स देने होते हैं. इसमें आपको 3 ऑप्शंस या फिर 4 ऑप्शंस आपके दिए होते हैं. ठीक है, तो इन 3 ऑप्शंस में और इन 4 ऑप्शंस में माय डियर स्टूडेंट्स आपको जो भी सही लगता है उस सर्कल को आप पूरा कलर कर देंगे. ठीक है, लेकिन अगर आपने सर्कल को पूरा कलर नहीं किया, हाफ कलर करके छोड़ दिया या टिक करके या फिर ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये चारों ऑप्शन क्या है आपका गलत है ओएमआर शीट में आंसर देने का. ठीक है, नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी टिक द करेक्ट ऑप्शन. द अर्थ इज आवर, अर्थ हमारा क्या है, होम है. ठीक है, मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड रोल्ड. नाउ अ कंपास इज यूज्ड टू फाइंड ग्लोब मैप्स डायरेक्शन. अ कंपास इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, A dash is the small model of the earth. कौन है small model earth का? ग्लोब है. देखिए, A globe is a small model of the earth. We can study the dash on a map. ठीक है, तो मैप में आप क्या स्टडी कर सकते हो? Let's see. We can study the earth on a map. मैप का मतलब क्या है? हमारा planet earth. ठीक है, so right here we can study earth. A book of map is called atlas. Dash are very important for us. Maps are very important for us. Okay, so right here maps. Maps are important for us. There are 4 direction. कौन कौन से 4 direction है? North, South, East, West. Okay, now see, इसमें हमें क्या करना है? Say whether the following sentences are true or false. आपको true false बताना है. The earth has a land, water and air, so life is found on it. True है कि false है? ये तो बिल्कुल true है. ठीक है, so right here true. The map has 2 end points. मैप में 2 end points होते हैं? नहीं, ये ग्लोब में होता है. ठीक है, so it is false. Map are of same size. False. Map small भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, so this is also your false. There are 7 continents on the earth. 7 continents है, बिल्कुल सही बात है. Map can be folded and rolled. सही बात, true है ये. A compass is like a toy. क्या compass का toy की तरह है? सही है ये? नहीं. देखिए,
A compass is an instrument which help us to know the directions. ये वॉच की तरह है, ठीक है. So ये भी आपका क्या है, आंसर फॉल्स है, ठीक है. Okay, now answer the following questions. Why is life possible on the earth? Life earth पे ही क्यों possible है? तो इसका आंसर ये रहा, देखिए. The earth is our home. All living beings need air to live. The earth is surrounded by air. It is called atmosphere. The earth has water too. The land, water and air are necessary for life. The earth has the land, water and air, so life is found on it. Okay? चलिए, अब next question आपका क्या है? What is a globe? Globe क्या है? आपको globe को define करना है. So ये रहा है इसका आंसर. A globe is the small model of the earth. It shows the round shape of the earth. We can only see one half of the earth on the globe. We have to rotate it to see the other half of the earth. Okay, the globe shows the water bodies and land in their accurate proportion. We can see the correct shape and size of the water bodies and continent on it. Okay, and in globe we can also find two end points. The top end is called North Pole and the bottom pole is called as South Pole. And as well as we can also see our imaginary line called equator, which divides our planet Earth into two parts. Okay, upper part is called as northern hemisphere, the lower part is called as southern hemisphere. ठीक है, चलिए. Now the next question, what is called the equator? Equator क्या है? ठीक है, तो ये रहा, देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, देखो. The circle exactly in the middle between the, okay, in globe, okay, in globe we can find two poles. Okay, topmost called as North Pole and bottommost is called as South Pole. So the circle exactly in the middle between the two poles is called the equator and it divides the earth into two equal halves. ठीक है, चलिए. Now the next question, what are called northern hemisphere and southern hemisphere? तो northern hemisphere और southern hemisphere कौन कहलाता है? ये रहा, देखो. See, the half to the north of the equator is called the northern hemisphere and to the south of the equator is called the southern hemisphere. ठीक है, चलिए. What is a map? Map क्या है? देखो ये रहा. Okay, we can study the earth on a map. Okay, a map is a drawing of the earth or a part of it. Okay, maps can be big or small. Okay, sometimes we use large sized map and hang them on the wall. These are called wall maps. Okay, and we can know the political and physical features of a country through maps. ठीक है, now the next question, what is the difference between an ocean and continent? Ocean और continent के बीच का difference क्या है? तो ये रहा आपका, देखिए. Okay, 3/4 of the earth is covered with water. Okay, in map we can see a very large water bodies. These water bodies are called oceans. In our planet earth we can see the four main ocean bodies: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean. Okay, and now what about continents? Similarly, on our planet Earth, okay, similarly on the map, we can see a very large areas of land on the Earth. They are called as continents. There are total 7 continents on the planet Earth. तो आप यहाँ पे 7 continents का नाम भी लिखेंगे, ठीक है? Now the next question, what is the importance of maps? Maps important क्यों है, ठीक है? तो देखो importance of map ये रहा आपका, आप ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? Then the last, what is a compass? Compass क्या है? So you can see here, compass क्या है? A compass is an instrument which helps to know the directions. Okay, there are 4 directions: east, west, north and south. This direction help us to locate places on the map. The compass is like a watch and has a needle which always point on the north direction. ठीक है? Okay, now activity time A. Make a map of your locality showing important places as school, post office, hospital, bus stations, etc. आपको इस दिए हुए पिक्चर में क्या करना है, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का आपको मैप बनाना है और साथ ही साथ आपके एरिया में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल्स है या बस स्टेशन है, ठीक है, वो सब आपको उस मैप में बताना है. B. Take a outlined map of Asia and locate the direction in which India is located and color it. My dear students, you have to take the outlined map of Asia continent. ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट का मैप आपको लेना है और इसमें आपको इंडिया को बताना है कि इंडिया कहाँ पे है एशिया में, ठीक है. और जब आप इंडिया को लोकेट कर लोगे, आप क्या करोगे, हमारी कंट्री इंडिया को आप कलर कर दोगे, ठीक है. देन सी, कलर द वाटर बॉडीज ऑन इंडियाज आउटलाइंड मैप. आपको इंडिया का मैप लेना है, उसमें आपको वाटर बॉडीज जो भी इंडिया कंट्री के पास है उनको कलर करना है. देन डी, टेक अ आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड मार्क द इंपॉर्टेंट सिटीज इन इंडिया एंड कलर इट. आपको इंडिया का मैप फिर से लेना है और इसमें इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनके बारे में आपको लिखना है और उन एरियाज को कलर करना है. ओके,
Okay, my dear friends, so this is all about our chapter number 14. In this way, we have completed your EVS book. Okay, now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new book. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.